This word highly ends with ly, right? What is the meaning of the word high? Right, high, huh? So this is adjective, right? High is adjective, but when we add ly to the word, it becomes adverb. So adverb can go with two things. Adverb can go with adjective and adverb can go with verb. So it is likely to attract highly dash. So in this case, as it says, na loyal employees. So we are looking for adjective. Loyal is an adjective, right? AL words, all adjectives. So they same way, we are looking for highly adjective. Interest is not adjective. This is not, this is, this is. So also there is a collocation. Again, a highly qualified. We say that it's a collocation as well. So, you know, when I say collocation, what do we do with that? We put that on the notebook so that for next time, if that comes in the exam, we know it. So we always have to even revise our collocation list. Okay. So highly qualified staff. Okay. Who understand and work towards the company's best dash. What do we want to do for company? Company ka kya best karna hai? What is company's best interest? So no, also it's called a phrase, in your best interest. Best interest means something that will favor you the most. Again, it is a set of collocation. So it's a vocab collocation, like phrase collocation. So learn it, put it on your notebook. Don't assume you will remember it. Okay. So let's not act smart. We will try to learn and we will make sure we have it in our list. So maintain a collocation list, even if it's your day one, start today. Okay. Collocation list should be maintained and keep writing every day. You put a date here. Okay. This date we learned this collocation. This date we learned this collocation, and revise your collocation list every morning. It will take you 2 minutes and start revising it before the class, like just before the class, you can revise your list. Okay. Thank you for all those who have voted in the chat. Like I asked you about your requirement. If you have voted, thank you so much. If you have not voted, please vote so that I know what is your requirement and I can support you according to your need. Okay. Now moving further, I think we are good. We are having all the answers right. There we are. Okay. So all of them were what? Collocations, mutual respect, mutual funds. That's also collocation, mutual funds. Okay, let's do this question. Society and culture have great dash on the business environment. Now look at this word on. It's called verb plus preposition. Okay. Have a great or noun plus preposition. A dash on. So on ke saath, which word goes with on? Have. Society and culture have great, normal on, department on, impacts on, demands on. No. Impacts on. Demand is never on. Demand is always off. Ki demand hai? What's your demand? Yeah, I demand of this. Okay. Impact is always on. So what's the answer? On. So see, if you know the collocation, like Navkirat was like, tha, she knows it. So if you know the, or Rajvinder Si shayad, one of you. So if you know the collocation, it will take you 3 seconds only. So what is the collocation? Impact on. Okay. Should it go on your notebook? Yes. If it is not in your list, you should put that in your list now. Okay. So society and culture have great impacts on, like these men. I didn't even read. I know on ke saath yahi lagna tha options mein se. So like that. These factors include demographics like population growth, age distribution, and attitudes towards safety and health dash. What do we want to do with health? Health, normal health department, health impacts, ये तो gone है ना, health demands, health rising, health consciousness. Normally we say na, he is very conscious. Health consciousness, yeah. Consciousness looks good. Okay. For example, dash rates of obesity
have forced management to look closely at marketing campaigns in giant corporations. Which rate? So rate is either high, Rising. the rate is either low, like up or down. So which of the following word talks about up or down? Is there any word? Rising. Rising. So what's your answer? Rising. Okay. So why rate is always up or down? Because rate means per this. So it values the speed, the amount. So that's why it is up or down. Are we good? So we learned this word from collocation. Health consciousness is also a kind of collocation. No? How aware are you about your health? That's called health consciousness. So we're good. If you don't understand anything, it's okay. You should ask again. I might be able to answer your doubt in a different way. Okay. Let's try solving this question. Okay. Management is everywhere. Time people work to achieve a goal, they are dash in management. They are dash in management. Now, again, maybe it might feel like overwhelming, but I always talk about grammar. With any type of helping verb like is, am, are, was, were, we do have three options. Option one, option one, verb plus ing. Okay. Option two, we can put adjective. I say, he is smart, you are nervous. What are these adjectives? Option three, third form of verb. When? Passive. Passive means putta. Putta means when object goes before subject. It is called passive voice. Putta. P for passive, P for putta. So it's third. So verb जो है ना, वो किसके ऊपर एक्शन करेगी? इस तरफ. जिसे class is taught. Taught verb है. क्लास को पढ़ाया जा रहा है तो क्लास की तरफ. आई एम टीचिंग क्लास, तो मैंने इधर है और एक्शन इधर हो रहा है. किसको पढ़ाया जा रहा है? क्लास को. टीचिंग मिडल में रह गया, क्लास इधर रहेगी, तो एक्शन किधर हुआ? इस तरफ. सो नॉट गोइंग इन डिटेल नाउ, बट दिस गोज इन एक्टिव वॉइस. ठीक है. तो अब ऑप्शंस में क्या इधर आईएनजी आएगा? है आईएनजी? दो हैं. या तो दे आर एंगेजिंग इन मैनेजमेंट, एंगेजिंग के साथ ना विद लगता है. दे आर स्पेशलाइजिंग इन मैनेजमेंट, हो सकता है आईएनजी लगेगा ना, हो सकता है. उसके बाद एडजेक्टिव है ही नहीं. थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, दे आर रिपोर्टेड इन मैनेजमेंट. नहीं, मेरे को स्पेशलाइजिंग लग रहा है क्योंकि वो मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं कि व्हेन पीपल ट्राई टू अचीव अ गोल दे आर स्पेशलाइजिंग इन मैनेजमेंट, कि वो मैनेजमेंट को बिल्ड कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं. ठीक है. सो एटलीस्ट यू कुड गो हेयर. इसको तो छोड़ दिया ना आपने समझ के. So that's how you answer these questions. At least as dash back as dash back as. तो नहीं बेटे, एक phrase है as far as I know. एक phrase है, learn कर लो. As far as I know में ना, जितों तक मैनू पता है, जहां तक मुझे पता है, हिंदी वालों के लिए है ना. So as far as I know. Hello जसप्रीत. ठीक है. हेलो मैम. As far as I know. ठीक है जी. सो सीधा ही है, कोई ग्रामर नहीं है, पर ये कहानी है ना, ऐसे ही है, ये ऐसे ही आना है, वैसे ही लिखना पड़ेगा. फिर आ गया नेक्स्ट में, पीपल हैव यूज्ड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. टुडे ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ ऑल टाइप्स यूज मैनेजमेंट टेक्निक्स टू प्लान एंड डैश देयर एक्टिविटीज. यहाँ पे कौन सा वर्ब? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है ना, और यहाँ पे एंड लगा हुआ है, तो एंड के आगे और एंड के पीछे सेम टाइप ऑफ ग्रामर रहती है. ठीक है. अगर वर्ब है तो वर्ब आएगी, अगर नाउन है तो नाउन आएगा, अगर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव आएगा. तो प्लान के साथ ये तो गए, ये भी गया, ये भी गया. इनहेंस देयर एक्टिविटीज या ऑर्गेनाइज. अब यहां से आपको आंसर में क्या लग रहा है, क्या आना चाहिए? Organize. यस. तो समटाइम्स पैराग्राफ कहेगा मेरे को सुनो, मैं बता रहा हूँ, बोल के बता रहा है वो. ये देखो दी अगर पहले का आपने आंसर तो एंगेजिंग है. हाँ, ऊपर देख लेने हैं. अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो यू वोंट बी. मैंने ना लग गया सीगा कि भी स्पेशलाइजिंग क्यों नहीं आना, क्योंकि ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਯੂ ਆਰ ਯੂ نو ਮਾਸਟਰਿੰਗ ਜਾਂ ਡੂਇੰਗ ਗੁੱਡ ਬਲਾ ਬਲਾ ਬਲਾ, ਐਦਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ. दैट्स व्हाई. सो
engaging in ਹੁੰਦਾ है, engage with ਹੁੰਦਾ है, sorry, ठीक है, engaging in. Engaging in means you are doing that, you are getting busy with it. Okay, engage means you are getting busy with it. So you can learn this collocation, engaging in, and please put as far as well on your notebook. लिखो, लिख रहे हो? जी लिखे? तो as far as लिखे? Okay. नहीं लिखा तो लिख लो. When we dash and consider an individual's personality, consider क्या है? Verb की first form consider है. And है तो and क्या कहते हैं? यहाँ पे भी क्या आएगा? First form of verb. When we feel, अब problem ये है कि almost सारी first form of verb ही हैं. Determine. देखो अब consider है तो consider के साथ जैसा कोई word आएगा, ठीक है? When we feel and consider an individual's personality, when we determine and consider, when we behave, when we remain, when we recognize and consider, इसमें से या in Recognize भी आ सकता है वैसे यहाँ हाँ, determine. हाँ. So we've got these options. Anyways, I'm gonna go further and come back, है ना? Maybe ना जो कुछ cancel हो जाए. How that person will dash, we can more clearly predict how that person will dash. अगर आप person की personality को find out कर रहे हो, like you're trying to find out how that person will, तो Behave. will के साथ भी first form of verb लगती है, ठीक है? कौन सी verb लगती है? First form. तो अगर वो person की personality के बारे में बात करना तो मैं तो बोलूंगी behave, Behave. हाँ. ठीक है? कि वो कैसे, किस उसकी क्या हरकतें होंगी, है ना? कैसे वो behave करेगा. Though a word of caution should be added to remind us that behavior is dash. Okay, अब is लगा हुआ है, याद है ना मैंने बताया था कि अगर helping verb है तो 3 options होती हैं. नहीं याद तो Influence आएगा ना, influenced. एडजेक्टिव भी लग सकता है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी लग सकता. मैं ताड़ी सुननी नहीं, जेड़ा मर्जी बोली दो जब तक मैं बुलानी नहीं. एडजेक्टिव थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है? सो क्योंकि बिहेवियर इज डैश बाय, बाय भी लगा हुआ है, तो बाय ना मेरे को सीधा सीधा बोल रहा है कि मैं तो पैसिव हूं भाई. ओके, सो पैसिव का रूल क्या होता है? थर्ड फॉर्म, ठीक है? सो अब दो ही रहेगी, इन्फ्लुएंस्ड है, मेंटेन्ड है. बिहेवियर आप मेंटेन करते हो कि बिहेवियर को इन्फ्लुएंस किया जाता है? फैक्टर होता है ना बेटे, वो फैक्टर जो होता है वो इन्फ्लुएंस के साथ ही लगते हैं, ठीक है? सो आंसर क्या आएगा? पास में था, थोड़ी ग्रामर भी लगेगी, है ना, थोड़ी वोकैब भी लगेगी. सो बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी फैक्टर्स, बोलते नहीं इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी फैक्टर्स. वैसे ही बात है, कोई भी चीज हो तो हम क्या बोलेंगे? इन्फ्लुएंस्ड, ठीक है? ओ सॉरी, यहाँ आना है. And that every situation is unique. Personality and values still dash helpful predictors. अच्छा, still लगा हुआ है ना? Still ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ बड़ा common ਜਿਹਾ word है remain लगदा है ना? Still remain है ना? Common ਜਿਹਾ है, ਮੈਨੂੰ नहीं लगता कि it's something new I'm talking, right? Shreya, Sarabjit, Rajvinder, Nimrat, अब you can talk and say yeah no. So still remain. Yeah. Yeah. Okay, so we're good with remain, we're good with influence, we're good with behave, we're good with recognize. अच्छा, recognize से तो cancel करके हजे आए नहीं सी, है ना? So determine हुंदा अगर we were trying to find, है ना? We were trying to search for something. हम क्या कर रहे थे? Predict, है कि नहीं है? So predict का दूसरा ऑप्शन क्या है? Determine. So determine का मतलब वो करना, सॉरी, फाइंड आउट करना, तो वो तो ऑलरेडी लिखा हुआ है. तो हम क्या करेंगे? इसको रिकॉग्नाइज करें. रिकॉग्नाइज मतलब पहचानना, ठीक है? हाँ, रिकॉग्नाइज या ना, प्रिडिक्ट तो ऑलरेडी लिखा हुआ है ना. चलो, आई होप इट वाज हेल्पफुल. लेट्स कीप ट्राइंग. चेंजिंग ए फॉर्म्स कल्चर इज हार्ड and many dash fail. Many dash fail. Many, please look at this word. It says I am a noun, but I am plural.
Okay. So plural, noun. Okay, 1, 2. So what do we say? Many dash fail. Many states fail या many attempts fail. Attempts. ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਪਰ try ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ fail ਹੁੰਦੇ ਆ. So try ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? Attempts. Good. उसके बाद आ गया it dash takes years. अब takes तो लिखा हुआ है, verb लिखी हुई है, तो verb के आगे क्या लग सकता है? क्या लग सकता है verb के साथ? Adverb. Adverb. Good. especially. So either it's especially or it's generally. ly word ही है ना. So it generally takes years and may require replacing people, or it especially takes years and may require replacing people. Generally. Choice is yours. जनरली आएगा वैसे है ना मतलब भी मैंने ਜਦੋਂ especially ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ ਜੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ. मेरा भी सही है Anyway, let's see. जनरली आएगा हाँ, वही दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि जब आप स्पीड से सॉल्व करोगे ना, तो आपकी जो टंग है ना, ग्रामर काम करे ना करे, आपकी टंग बताएगी कि क्या सुंदर लग रहा है सुनने में, क्या बोलने में क्या इजी लग रहा है, वो आंसर होता है. इसीलिए फास्ट करने चाहिए. चलो, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेटर्स जोक दैट देयर आइडियाज फॉर OER डैश स्लोली. अब स्लोली लिखा हुआ है ना, तो ये तो आएगा नहीं, ये भी नहीं आएगा, है ना, ये तो गया. वर्ब आएगी इनमें से एडवांस स्लोली, ड्राइव स्लोली. ड्राइव स्लोली अच्छा, स्टेट्स क्यों नहीं आना? क्योंकि आइडियाज है, तो आइडियाज प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है? सो ओनली सिंगल. सो ड्राइव स्लोली, अगर ड्राइव लिखा होता तो ड्राइव फ्रॉम लिखा होता ना, ड्राइव बाय, वो तो है नहीं. एडवांस स्लोली का मतलब बढ़ रहा है धीरे धीरे. आई होप दैट मेक सेंस. एडवांस मीन्स बढ़ना धीरे धीरे. That should be your answer. Now, there you go. See, only your tongue said generally is the answer. It especially वो बोला ही नहीं गया, है ना? So looks good, and we're good with all of that. Very well. बच्चे समझ आ रहा है सबको? फिर एक बारी बता रही हूँ, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, there are few. This is just a practice session. It's not the lesson, okay? रीडिंग रोज करनी पड़ती है ना, क्या करें. जो लेसन है ना मनदीप, आप न्यू हो, तो बच्चे लेसन है ना जेड़ा वो 10:15 बजे शुरू होएगा. दैट मीन्स इन अनदर 18 मिनट्स. ओके ओके मैम. ओके. हाँ, उन्हीं देर में वैसे रीडिंग करांदी हूँ रोज. जी जी. ओके ओके. Polar bears are creatures of the sea ice, and they spend as much of their time on it as possible. Dash vast distances in dash of seals. डैश. अच्छा, डिस्टेंसेस को आप क्या करते हो? कवर हाँ, कहते नहीं मैं इतना डिस्टेंस कवर कर लिया है ना, इतना तय कर लिया. हिंदी में पंजाबी में हमने इतना सफर तय कर लिया. सो तय को, और मेरे को हिंदी में क्या कहें, अपने सफर को पूरा कर लिया, जैसे हम बोलते हैं उसको बोलते कवर. ठीक है, इट्स अ फ्रेज ना. कोई भी लैंग्वेज है उसमें 2-3 तरह की यूज होती है वोकैबुलरी. एक होती है सीधी बात, एक होती है थोड़ी सी घुमा के बात करना. मैं इतना सफर तय कर लिया, कहना तो मैं भी ना, मैं इतनी दूर आ गया, है ना. सो वी डोंट से दैट, वी से कवर. सो दैट्स कॉल्ड कवरिंग. ठीक है. और ऑल्सो एक और चीज, वैसे तो आईएनजी बहुत सारे हैं, बट अगर कॉमा लगा हो ना तो मोस्टली आईएनजी वर्ब आती है. सॉरी अबाउट दैट. हेलो. Sorry guys, I had a quick call. चलो. इन डैश ऑफ, अब इन को भी ध्यान में रखना है. बेटे बेटे आज सॉल्व कर रहे हैं. हाँ, सत श्री अकाल. इन डैश ऑफ, इन डैश ऑफ, इन सर्च ऑफ इन सर्च ऑफ. ਹੁਣ पोलर बियर की खांदे हैं? सील्स. तो ओदी की करनगे ਉਹ?
जानवर बेचारे कैसे खाते हैं खाना, लब लब के सर्च करते हैं। Bay, Hudson Bay melts completely each summer. The region's bears must spend the warm months ashore. Dash in cool earthen dens. Dash in cool. शेल्टरिंग और बिल्कुल शेल्टरिंग नो, हम्म, बेचारे उसके अंदर ही रहेंगे ना, डेन के हम्म, अंदर ही वो अपना वो ढूंढेंगे ना, छत बोलते हैं जिसको, तो वो शेल्टरिंग ही आएगा, शेल्टरिंग इन, उसके अंदर रहना पड़ेगा। शेल्टर बेटे ओ गुड वर्ड, सिंपल वर्ड, छात्र जिमें मतलब भी कोई वो मिल जाना, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣੀ। बना देना, शरण, ठीक है, लाइक शेल्टर इज लाइक इफ somebody allows you, okay, you're not safe, you can stay here for some time, like you gave them the shelter, okay, safe place to live for some time in emergency. Okay, words, you know, like simple word, but like how do we say it? Okay. Greenhouse gas is the primary pollutant dash for climate change. अब for लगा हुआ है भाई, इसमें एक ही वर्ड है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस की वजह से ये हुआ, रिस्पॉन्सिबल। यो ब्रो, रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, सो responsible for climate change. Not only are scientists, leaders, and activists trying to dash its production, trying to dash its production. अब क्या करना चाहते हो आप? डिलीवर। ग्रीन हाउस गैसेज हैं, they are like they are responsible for climate change, which is not a good thing. So what do we want to do with greenhouse gases? We don't want them, right? So मतलब उसकी प्रोडक्शन को कम करना, like उसको नीचे को लेके जाना, यही होना चाहिए प्रोडक्शन। हॉल्ट, हॉल्ट आएगा फिर। यस, अब प्रॉब्लम कहाँ आई? वोकैबुलरी। जिसको पता ही नहीं हॉल्ट क्या होता, वो कैसे उसको टच करेगा? हॉल्ट मीन्स स्टॉप, यस, हॉल्ट मीन्स स्टॉप। सो कैन वी से टू स्टॉप इट्स प्रोडक्शन, कि उसको रोक देना बिल्कुल, ठीक है। But they also want to dash it directly from the air, from के साथ, want to dash it from the air, कैप्चर। to capture it from the air and lock it underground. उसको वहां से मतलब कहीं और जाके बंद करना, उसको पकड़ लेना, कैप्चर करना, फाड़ लेना। सही हो गया? गुड। आज इजी है ना सारे क्वेश्चन? मीडियम है फिर भी इजी है, इजी है। DNA sequencing dash the origin of some odd looking human fossils. DNA sequencing dash revealed linked ਦੇ ਨਾਲ to ਲੱਗਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, surrounded by ਹੁੰਦਾ, ठीक है, drafted, extracted from, delved into, लिखो collocations लिखो। so delved होता है into मतलब गहराई में जाना, so delved into का मतलब गहराई में जाना, extracted from मतलब वहां से निकालना, ठीक है, सराउंडेड बाय मतलब घिरा हुआ होना, घिरा हुआ, सराउंडेड बाय, लिंक्ड टू का मतलब उसके साथ उसका कनेक्शन होना, ठीक है, रिवील्ड का मतलब पर्दाफाश करना या दिखाना, कोई चीज दिखना या दिखाना। तो यहाँ पे कह सकते हैं रिवील्ड द ओरिजिन ऑफ सम ऑड लुकिंग ह्यूमन फॉसिल्स, है ना। देखो कोलोकेशन कितनी स्ट्रॉन्ग होगा। अच्छा, टू दे नाल केड़ा वाला आना आंसर? मैं पैराग्राफ पढ़िया भी नहीं, Linked. मैं नहीं पढ़िया, मैंने नहीं पता की लिखा हुआ है, मैं सिर्फ टू देखा, मैं क्या चल तुक्का लगा देने हैं, लिंक्ड लगा देते हैं। अब इसके साथ क्या आएगा? फ्रॉम के साथ Extracted. लेट्स सी अगर हमारी कोलोकेशन हमारी हेल्प करती है। और मैंने बोला था ना 3 सेकंड्स में सॉल्व होते हैं फिर ये क्वेश्चन। मैंने आपको 1 मिनट बोला ना, वो जिसको 8 चाहिए, मैंने बोला 1 मिनट, एक क्वेश्चन 1 मिनट में करना है, 30 मिनट्स चैलेंज करना है।
भाई लगते तो 30 सेकेंड ही है समटाइम, ठीक है, इसकी वजह से collocations की वजह। Did you write all the collocations on your notebook? Linked to, extracted from, derived into, delved into, surrounded by, लिखा कॉपी पे? सारी लिख ली आपने ऑनलाइन? यस मैम। कौन आया ऑनलाइन अभी अभी? अच्छा कंचन, ओके ठीक। हाँ जी। All right, let's go for the next question. अभी भी है 10 minutes हमारे पास। आज हमने राइटिंग के क्वेश्चंस करने हैं इसके बाद, ठीक है। डायबिटीज एंड ओबेसिटी रेट्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय, अभी रिड्यूस्ड बाय भी कोलोकेशन होती है, डैश टाउन्स एंड सिटीज इनटू, ध्यान में रखना इनटू के साथ आंसर लगाएंगे, प्लेसेस वेयर इट इज सेफ इनटू, ट्रांसफॉर्मिंग इनटू, कोलोकेशन है, लिखो, लर्न करो। ट्रांसफॉर्मिंग इनटू, इससे इसमें चेंज करना, तो ट्रांजिशन होती है टू, ठीक है, और फ्रॉम हेयर तो यहां जाना तो इन लग गया तो इन टू, तो ट्रांसफॉर्मिंग, ट्रांसफॉर्मिंग ही वर्ड ट्रांजिशन बता रहा है ना, ट्रांस, ट्रांस बस वहीं से है, टू लगता है इसका मतलब ही ट्रांस होता है, ठीक है। सही है आंसर, बाद में देखते हैं पर सही है पक्का पक्का। इट इज सेफ एंड डैश टू वॉक, सेफ है, सेफ के साथ यहाँ पे क्या आएगा, कन्वीनियंट लग जाएगा, सेफ एंड कन्वीनियंट टू वॉक, साइकिल, पब्लिक वगैरह। जब हम ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो हम कन्वीनियंट ही बोलते हैं ना, इट्स कन्वीनियंस क्या है आपकी, आना जाना कैसे है, कन्वीनियंस, कन्वीनियंट, हो गया डन। और क्योंकि ये भी एडजेक्टिव था तो ये भी एडजेक्टिव था, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, साइंटिस्ट स्कोर्ड more than 170 previous studies and discovered dash evidence, which evidence, vocabulary, सराउंडिंग तो आना नहीं, पोएगेंट्स। ठीक है, बोलिया भी नहीं जा रहा जेड़ा बोलिया नहीं जा रहा वो आंसर किवें करांगे। कंसिस्टेंट एविडेंस, कंसिस्टेंट एविडेंस का मतलब लगातार सेम चीज मिल रही है, कंसिस्टेंट मींस लगातार सेम, दैट्स कंसिस्टेंट। सो अभी प्रॉब्लम ये है कि इसका मीनिंग क्या है हमें नहीं पता, लेट्स फाइंड इट आउट, मतलब मैंने पता भी होएगा, मैंने काम ही नहीं पता, कई बारी नहीं भी दिमाग चलता। The quality of evoking a keen sense of sadness or anger. So poignant is a negative word, पहली बात। पॉइजन तो याद रखियो, पॉइजन, पॉइगनेंट, ठीक है। मतलब ये है कि एक बंदा है, खुश है, हेल्दी ब्रेन है, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਇਜ਼ਨ ਪਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੈਲਦੀ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੋਇਗਨੈਂਸੀ, ਕਿ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਪੋਇਜ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ, ਪੋਇਗਨੈਂਟ ਮੀਨਸ poisoning the brain with negative thoughts, okay? I think it helps, I hope it helps basically। चलो, poignant। So अगर आप मेरी ये क्लासेस एवरी डे लगाते हो ना फॉर नेक्स्ट 10-15 डेज, भाई सच में बता रही हूँ रीडिंग इंप्रूव होती है, पर क्लास लगानी ध्यान नाल है पता चले मैं अकेली बोलती रह जाऊं वो नहीं होना चाहिए, so you should be pretty much attentive। Let's do one more question। Students who were dash to the highest level of outdoor noise pollution, dash to, sorry मेरी पेंसिल कितने गई, डैश टू, अब टू के साथ वर्ड देखना है कौन सा लगेगा। सो एक्सपोज्ड टू, कोलोकेशन है, ठीक है। कहते नहीं इफ यू योर स्किन इज एक्सपोज्ड टू सन इट विल गेट टैंड, है कि नहीं ब्रो? हाँ, सो एक्सपोज्ड मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाना, एक्सपोज का मतलब होता है कोई चीज जो है वो विजिबल है और इट कम्स इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद समथिंग, दैट्स कॉल्ड एक्सपोज्ड, और इसके साथ टू लगता है, ठीक है। और क्या है,
ये डिजाइंड होता है ना, डिजाइंड फॉर होता है, ठीक है। ओवरलुक के साथ इनटू लगता है। लेट्स सी इफ वी हैव एनी सच कोलोकेशन फर्दर। नॉइस पोल्यूशन while at school showed slower improvements in memory and dash। मेमोरी के साथ और स्कूल में क्या चीज चाहिए बच्चों के लिए? अगर एक बच्चा स्कूल में है, एक तो उसका दिमाग तेज होना चाहिए, और क्या बेटर होनी चाहिए? इंप्रूवमेंट्स इन मेमोरी एंड अटेंटिवनेस मेंटेनेंस। और परफॉर्मेंस। तो हूं ਅਸੀਂ कंफ्यूज हो गए, है ना, कि अटेंटिवनेस है कि परफॉर्मेंस है। लेट्स जस्ट वेट एंड कंटिन्यू रीडिंग। रोड ट्रैफिक नॉइस आउटसाइड स्कूल्स में डैश द, ओके मे ते आओ, ग्रामर थोड़ी जी लिख लेने, जो है ना मे माइट मस्ट, क्योंकि ये ना फ्यूचर प्रिडिक्टेड वर्ड्स ਹੁੰਦੇ ਨੇ, कैन कुड, जिन्ने भी है सब फ्यूचर बारे दसदे हैं। ਤਾਂ फ्यूचर ਦੇ ਨਾਲ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सारे मॉडल वर्ब्स ਦੇ ਨਾਲ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ਇਹ ਤਾਂ वर्ब ही नहीं है, ਇਹ भी वर्ब नहीं है, ਇਹ भी नहीं है, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, है ना। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, मे impair the development, मे overlook the development of a child's attention। ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪਿਛਲਾ? दसो की आंसर आएगा, इत्थे आंसर की आएगा? दोबारा देखो, Attentiveness. Attentive. Yeah. ਹਾਏ ਹਿੰਟ ਹੈ, ਲੱਭੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਸੇਜ਼ ਵੇਟ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। सो एक बारी होप रखा करो, एंड तक जाओ, एंड तक जाओ, समझो, देखो। अटेंटिवनेस मतलब अटेंशन, अटेंशन रखना क्लास। अच्छा, हम यहाँ पे थे, मे के साथ हमने क्या लगाना है? मे डैश द डेवलपमेंट, मे इम्पेयर द डेवलपमेंट। अच्छा, इम्पेयर का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं। इसका मतलब नेगेटिव, कि इम्पेयर मतलब खराब कर देना। देखो, रोड ट्रैफिक नॉइस आउटसाइड स्कूल्स, ये भी तो प्रॉब्लम ही है ना। ट्रैफिक जो है वो बच्चों को डिस्ट्रैक्ट ही करेगा, इम्पेयर कर सकता है ना, वो उसकी अटेंशन को खराब कर सकता है ना। तो वी वुड से इम्पेयर। सो ये मैंने कहाँ से किया? टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, इट वॉज अंडरस्टैंडिंग दिस। अगर मैंने यहाँ को इसको समझा, तो मेरे को समझ में आया कि यहाँ पे कौन सा आना है, क्योंकि ऑप्शंस में अब वर्ब तो आनी है, पर मेरे पास दो चॉइसेस हैं, तो मैं उसको क्लोज ऑप्शंस में ले आई। मेरा 50% चांस है, प्रोबेबिलिटी जिसको बोलते हैं, सही होगा। 50% बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, इसमें से एक लगाना है। मैंने थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा, मैंने 100% पर। तो कई बार क्वेश्चंस को ध्यान से करना पड़ता है, सारे फास्ट भी नहीं होते, सारे स्लो भी नहीं होते, ठीक है। उसके बाद आगे एकेडमिक डैश एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इन चिल्ड्रन। अब एकेडमिक के साथ क्या लगेगा? रिड्यूस एकेडमिक Performance. मतलब ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਆ ਰਿਹਾ। एकेडमिक ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੋਰ ਘੱਟ ਆ ਰਿਹਾ, एकेडमिक परफॉर्मेंस, ठीक है। एक्सपोज्ड टू सही हो गया, अटेंटिवनेस हो गया सही, मेमोरी ये इसको इम्पेयर क्यों किया? बिकॉज ऑफ ट्रैफिक नॉइस, ठीक है। हाँ, सही रहे ना सारा। चलो फिनिश करें क्वेश्चंस। मेरे को यही नहीं पता कि हमने किए कितने हैं। लेट्स ट्राई हैविंग अ लुक एट दैट, हाँ ना। चलो अच्छा है फिर तो रिकॉर्ड कितने है, टॉपिक का की नाम है? ट्रैफिक नॉइस। ट्रैफिक नॉइस कितने है, देखिए कितने ट्रैफिक नॉइस है। पेज कोई और खुला है, क्वेश्चन कोई चल रही समझ नहीं आ रहा। 675। हाँ कितने होने आप ना?
पता नहीं क्यों लिखते हैं वो ये। हाँ। चलो एनीवेज नेक्स्ट टाइम तुसी काउंट करते रहना ओके। चलो on that note now let's study the topic for today and Navjot you can start doing the speaking mock test ठीक है and you will write one essay for me पहले ऐसे लिख के दिखा दो और लैब च बैठ जाओ ठीक है हाँ हाँ जी ओ नरेश हेल्प करूंगी चाबी देन च उन्होंने वॉशरूम दी अच्छा ਵੀਰੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ all right now let's study what we are doing is summarize written text so मैं नाल कुछ बच्चों ਨੂੰ ਕੰਮ देन लगी हूं जिनको ये टॉपिक आता है जिन्होंने पहले किया हुआ है तो मेरे को पता है तो उनको मैं काम दे रही हूँ उन्होंने क्या करना है एक तो अपनी स्क्रीन शेयर कर लेनी है मेरे साथ ठीक है सो सरबजीत राजविंदर नावकीरत एंड मनदीप कौरनी सिंह ठीक है सो आपने क्या करना है अपनी स्क्रीन शेयर करके साइड पे अपने एक मेरे लिए समराइज रिटन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर करना है टाइपिंग करना ठीक है उतनी देर में मैं बाकियों को समझाती हूँ श्रेया को करा रही हूँ मैं निम्रत को कराऊंगी ठीक है मैं मनदीप को कराऊंगी जसप्रीत को कराऊंगी मनदीप सिंह फिर अपना नाफकीरत निम्रत राजविंदर श्रेया sorry Sarabjit you have to type so feel free to share your screen with me ठीक है ये मैं बताती हूँ अलाउ करती हूँ मैंने ये कर दिया अलाउ so you can start sharing and you can start doing it alright हाँ और कोशिश ये करनी है जो बच्चों ने मेरी क्लास लेनी है ऊपर ना आपको बहुत सारी स्क्रीन्स दिखने शुरू हो जाएंगे कंफ्यूज नहीं होना आपको गुन्नू की स्क्रीन पे रहना है गुन्नू कुमन की स्क्रीन पे ठीक है दीदी मेरी होगी स्क्रीन शेयर आगी ठीक की भी आएगी आपकी भी आगी ठीक है तीनों की आगी सो यू स्टे ऑन माय स्क्रीन ऑनलाइन पीपल बाकी जो है चलो समराइज रिटन टेक्स्ट समझते हैं ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਰੇਸ਼ उन्नी देर एक समराइज रिटन टेक्स्ट प्रैक्टिस कराएं क्लास ची बैठे बैठे मैं मैंने पढ़ा रही हूँ ਤੁਸੀਂ अपना आंसर करो ठीक है सबसे पहले द थिंग ओके लेट मी स्टॉप रिकॉर्डिंग एज वेल ऐसे रखते